Hello, my dear students. I welcome all of you in the warm platform of this Unacademy YouTube channel. Welcome, sabka welcome. I hope everyone is doing absolutely fine and you all are working very hard with respect to your 10th class. हाँ मेरे नादान परिंदों, come on in the chat box, come on everybody. Welcome. So, my dear students, as far as our last topics were concerned, as far as our last lectures are concerned, these are I guess 2 or 3 जहाँ पर हमने बात की थी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में. एंड इन द लाइफ प्रोसेसेस वी कंप्लीटेड a scenario of it that there are 4 life processes. एंड उसके बाद बेटे हमने क्या देखा कि हमने देखा न्यूट्रिशन एज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. न्यूट्रिशन एज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस ख़त्म करने के बाद हमने डाइजेशन ह्यूमंस देखा. In the yesterday's class, it was all about digestive system, its associated glands, and how the process of digestion takes place. For now, हमने आप मानो ऑलमोस्ट 80% अपना सिलेबस कंप्लीट किया है इस यूनिट में. हाँ, लाइफ प्रोसेस के यूनिट में हमने 80% सिलेबस कंप्लीट किया. तो आज हमारा जो नया टॉपिक है दैट्स all about respiration and breathing. That's all about respiration and breathing. These are two different terms, and but हम दोनों को एक ही जानते हैं. एज फार एज द रेस्पिरेशन माय डियर स्टूडेंट्स इज कंसर्न, I hope you cope up today with the lecture because I am not feeling well. My health is down to the wire, and I just will take the class, and I hope you will politely listen to it. Yes, everyone in the comments. Okay, my dear students. Okay, thank you so much. Okay, let's do it now. See, beta, there are two terms. One is the respiration and another is the breathing. These are two different terms but are interlinked and interrelated to one another. Respiration is that जो हमने ग्लूकोज कहाँ से लिया था, डाइजेशन से लिया था, उस ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना, उस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करना, मेरे बेटे उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन. इज द प्रोसेस. Respiration is the process. Respiration is the process in which glucose is broken down into small molecules, small soluble molecules of pyruvate, and pyruvate is again broken down in order to release energy, and the energy molecules are none other than ATP. देखो बच्चा, हमने फूड खाया, फूड इज कॉम्प्लेक्स एंड उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमने डाइजेस्ट किया, तो हमने डाइजेशन का प्रोसेस अंजाम दिया. बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज ऑफ द चर्निंग मूवमेंट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद इट, हमने क्या देखा, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्टेड इन माउथ and it ended in the small intestine. In the small intestine, this glucose is taken to the different cells, this starch is taken to different cells, this small soluble forms of carbohydrates are taken to different cells of the body via blood, where the cells utilize it for various processes, for various activities, and for overall the well maintaining of the body. Is that fine? यहाँ तक clear है? Is it clear, my dear students? Yes. Okay. And the breathing, as far as breathing is concerned, mate, this is the act of inhalation. Give me a second. Inhalation and exhalation of air. Inhalation and exhalation of air. मेरे बच्चे, this process of conversion of this process of inhalation and exhalation of air, it is known as breathing. देखो बच्चे, ये एक इंसान है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, से लेट्स सपोज इट्स ए ह्यूमन बीइंग, एंड इसने क्या काम किया, ही इनहेल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, अंदर लिया, और वहां से क्या छोड़ा,
carbon dioxide, carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation of air, or we can say inspiration and expiration of air, this is breathing. This is breathing. ब्रीथिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल खुद से करता है। एंड मेरे बेटे रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एक सेल्यूलर प्रोसेस है जो कि सेल की लेवल्स पे होता है। इस रेस्पिरेशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में क्या जिक्र किया गया है, आपकी एनसीईआरटी किन पैरामीटर्स को टच करती है, तो बेटे लेट्स सी दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हेयर। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बेटे इज डिवाइडेड इनटू, लेट्स सी हेयर, हाँ respiration. As far as the respiration is concerned, it's divided into two types. Main is divided into two types. Main is divided into two types. Bit important hai, I just want you to kindly focus on it. On the basis of whether oxygen is used or not, whether oxygen is used or not, this respiration is of two types. One is the aerobic respiration. Aerobic respiration, and another is the anaerobic respiration. N is the anaerobic respiration. बेटे all of us need food in order to get energy, and उस फूड को डाइजेस्ट करने में, उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में, अगर ब्रेक डाउन में, अगर रेस्पिरेशन में बेटे ऑक्सीजन का यूज हुआ तो दैट इज नोन एज that is known as aerobic respiration. See, this aerobic respiration, oxygen is used, and इसमें क्या होता है, there is no use of oxygen, there is no use of oxygen, there is no use of oxygen. It occurs in two cellular compartments. First is the cytoplasm, first is the cytoplasm, and second one is the mitochondria. And it occurs only in cytoplasm. जो बच्चे इस anaerobic respiration में एनर्जी होती है ना, the ATP formed in anaerobic respiration is 38 molecules, 38 ATP molecules, और जो यहाँ पे है it's 2 ATP molecules. We must say that living beings, we must say the humans, the complex organisms have adapted to aerobic respiration, for there is much yield of the energy. And बेटे जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी ज़्यादा बॉडी के लिए यूजफुल होगी, उतनी बॉडी ज़्यादा प्रोसेसेस कर पाएगी और उतने फंक्शंस मेरे बेटे बॉडी कर पाएगी. Is it clear? Is it clear to you, my dear students? Is it clear? Let me add some slides to it. Yes. Now bete, what is all about this aerobic and anaerobic respiration? Let's see. This is AEROBIC, aerobic respiration. जिगर मेरा हमेशा याद रखो, दो चीजों को हमें साथ साथ चलाना है. Initially what we did, हमने फूड लिया था और इस फूड को हमने किस में कन्वर्ट किया? We can say हमने इस कार्बोहाइड्रेट को लिया था, कार्ब्स को लिया था, और इन कार्ब्स को हमने किस में कन्वर्ट किया बच्चे? It was converted into glucose. And this glucose was transported in the small intestine में कहाँ से लिया जाता था? small intestine में, to different cells of body. ये एक जनरल रूल है, this was ये एक चीज जगह बनाया गया that, हाँ give me some time. देखो बेटे, ग्लूकोज को बनाया गया कहाँ से? कार्ब्स को डाइजेस्ट करके, और कार्ब्स को जो ही डाइजेस्ट किया उसके बाद क्या हुआ बेटे? उसके बाद हुआ कि ग्लूकोज बना. ग्लूकोज कहाँ लिया गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लैक्टील्स हमने पढ़ा था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाई हमने पढ़ा था, वहां पे एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हुई थी न्यूट्रिएंट्स की और डिफरेंट सेल्स तक ले जाए गए थे. अगर आप अपना 9th क्लास रिकॉल करोगे बच्चे, तो दिस इज सेल, इजंट इट सेल? यस सर इस सेल का अपना साइटोप्लाज्म होता है. यस ठीक है. दिस साइटोप्लाज्म
is the part of the cell. Yes sir, this is the part of the cell. अगर हम बच्चे बात करेंगे तो इसमें वेरियस ऑर्गेनेलीज भी होती है। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना होगा, आपने न्यूक्लियस का नाम सुना होगा, गोल्गी का नाम सुना होगा, राइबोसोम्स का नाम सुना होगा। क्लोरोप्लास्ट की बात करें प्लांट्स में तो क्लोरोप्लास्ट तो होता है, वोक्यूल्स होते हैं, और मेरे बेटे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली, एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वो भी होता है। क्लास 9th की बात है, देयर आर डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट इन द सेल। तो जिन ऑर्गेनलीज का हमें यहां पे जरूरत लगेगा, द ऑर्गेनलीज दैट वी आर गोना स्टडी हियर आर टू। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो मैंने अभी आपको कहा एरोबिक रेस्पिरेशन में मेरे जगह साइटोप्लाज्म यूज होता है और माइटोकॉन्ड्रिया यूज होता है। चलिए देखते हैं कैसे। अब इमेजिन करो बेटे, दिस फूड ये ब्लड की वजह से कहां आया, ये ब्लड की वजह से कहां आया, इस सेल में, इस सेल के पास आया। दिस इज सेल, दिस इज सेल, CELL सेल, ये सेल है और ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है। जो ही बेटे क्या काम हुआ, ये ग्लूकोज भैया, दिस ग्लूकोज भैया, हमारे ग्लूकोज भैया कहाँ आए, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुए और ब्लड में आए। ब्लड से लेके इसको लिया जाता है किस में बचे, साइटोप्लाज्म में। अब ये ग्लूकोज भैया कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में जो ही ये आया, इसको मेरे बेटे कन्वर्ट किया। दिस ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। इसको बेटे दो छोटे छोटे कंपाउंड्स में, दो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में तोड़ा जाता है, जिसको कहते हैं पायरुवेट, जिसको कहते हैं पायरुवेट, पायरुवेट, पायरुवेट एंड पायरुवेट। लेट मी ड्रा दिस डायग्राम ऑन बिग सो दैट आप समझ पाओ चीजों को। अभी तक यहां जो हमने पढ़ा बेटे, इट्स ऑल ओके, हाँ, इट्स ऑल ओके। सी, सी जिगर, ये सेल थी ना, यस सर, दिस वाज अ सेल। इस सेल में क्या था, अपना साइटोप्लाज्म था कि नहीं, था कि नहीं, हाँ। हमने क्या काम किया, हमने जो ही ग्लूकोज लाया बाहर से ब्लड वेसल के थ्रू, ये ग्लूकोज इसमें गया ना, इस ग्लूकोज को बेटे किस में चेंज किया गया, पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन के प्रोडक्ट है। इतनी जगह, इतनी इतनी जो प्रोसेस है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। और बेटे दिस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाना, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाना, इसको मेरे बेटे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, GLYCOLYSIS, ग्लाइकोलिसिस। जितना आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, बी इट सीबीएसई बोर्ड, बी इट एमपी बोर्ड, बी इट यूपी बोर्ड, या कोई भी बोर्ड हो बेटे, जितना आपकी एनसीईआरटी में, जितना आपके क्लास 10th में डिमांड है, उससे ज़्यादा हम पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा आपका सर यहाँ पे आपको पढ़ाएगा। What you have to do after attending my lecture, revise it and then start NCERT reading. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पिछले साल के पेपर्स देखो, आपका कोई आंसर नहीं निकला तो आपका भैया यहीं पे, फॉर यू आई एम हियर। सो बैक टू द लेक्चर। बेटे हमने क्या देखा, दिस ग्लूकोज is converted into pyruvate and this process is known as glycolysis. Where it occurs, sir, it occurs in the cytoplasm, it occurs into the in the cytoplasm. This is the first step of aerobic respiration. This is the first step of aerobic respiration. अभी हमने कहा बच्चे, this blood vessel यहां से भी है, and remember by our lungs, हमारी जो lungs है, we breathe, तभी हम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, तभी हम दीज प्रोसेस आर इंटरलिंक्ड टुगेदर। एक डाइजेशन में मदद करता है, एक सांस लेने में मदद करता है, एक ऑक्सीजन टू द सेल्स लेने में मदद करता है। बच्चे सुन वी ब्रेथ इन, हमने ब्रीथ ली ना, सी वी ब्रीथ इन, तो हमने क्या काम किया, हमने अपने नोज से, ट्रैकिया से इस ऑक्सीजन को बेटे अंदर ले लिया। दिस ऑक्सीजन इन द ब्लड वेसल कहां पे हुआ, एल्वियोलाई में हुआ। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑल दिस अबाउट, ब्रीथिंग में क्या होता है, कैसे होती है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, किन किन मसल से होती है, एंड कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्वड है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। अभी देखो बेटे, जो ही ऑक्सीजन आया ना, इस ऑक्सीजन को अंदर डाला जाता है, इस ऑक्सीजन को
अंदर डाला जाता है। देयर द सेकेंड ऑर्गेनली ऑफ द सेल जिसका जिक्र अब हमें करना है। आई एम ड्राइंग ए रफ डायग्राम बेटे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इस बेटे इस पायरुवेट को भी और इस ऑक्सीजन को भी अंदर लिया जाता है, इस पायरुवेट को भी अंदर लिया जाता है, इस ऑक्सीजन को भी अंदर लिया जाता है। In the aerobic respiration, what we saw, the first glucose is broken down into pyruvate, जिसको हमने glycolysis कहा, और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने क्या देखा बेटे बेटे that oxygen was brought in the cell, ऑक्सीजन लाया गया। देखो यहाँ पे लंग्स से लेके ऑक्सीजन लाया गया, जो ही ऑक्सीजन अंदर आया उसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा गया, और माइटोकॉन्ड्रिया में अब दो चीजें मिल गई, एक तो मेरे जिक्र ऑक्सीजन मिला, एक तो मेरे जिक्र पायरुवेट मिला, और इसकी वजह से क्या होता है, देयर ऑकर्स अ रिएक्शन, जिससे मेरे बेटे कुछ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, और उन प्रोडक्ट्स का नाम क्या है। देखो अब हम बोलेंगे दिस पायरुवेट एंड दिस ऑक्सीजन मिले, कहाँ पे मिले, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे रिएक्शंस हुई और क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ CO2, वाटर फॉर्म हुआ H2O, एंड मेरे बेटे एनर्जी फॉर्म हुई, एनर्जी बनी, इसी एनर्जी को हमने ATP कहा, इसी एनर्जी को हमने ATP कहा। दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटे अब ध्यान रखो मेरे साथ, अब ध्यान रखो मेरे साथ, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। बेटा देखो यहां से फूड लिया हमने, वी टुक फूड, एंड इस फूड को क्या हुआ, व्हाई इज इट नॉट रिस्पॉन्डिंग द पेन, अरे भैया चलना, हाँ हाँ हाँ, what has happened to it, yes 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 yes। देखो बेटे हमने फूड लिया, फूड में कार्बोहाइड्रेट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया ग्लूकोज में, जो ही ग्लूकोज में डाइजेस्ट किया, इस ग्लूकोज से को मेरे बेटे ब्लड वेसल से सेल्स तक लिया गया, सेल्स में क्या हुआ, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया पायरुवेट में, जिस प्रोसेस को हमने कहा ग्लाइकोलिसिस, और इस प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, हमने देखा। फिर इस पायरुवेट को मेरे बेटे कहाँ लिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ से जो ही हमने ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट किया तो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, जो ही ऑक्सीजन इनहेल किया तो ये ऑक्सीजन भी इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया, यहाँ पे एक रिएक्शन हुई जिसको हमने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और ATP बना। दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वेयर इन द ऑक्सीजन इज यूज, देखो बेटे यहाँ ऑक्सीजन यूज हुआ ना, यहाँ ऑक्सीजन यूज हुआ ना, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आई मस्ट से इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड, उसी को हमने बेटे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा। आई होप यहां तक बातें क्लियर, यहां तक बात समझ आई, यहां तक बातें समझ आई इन द चैट्स, ओके, नाइस नाइस नाइस। हाँ यस बेटे, इट इज दिस रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग जो हम दोनों इकट्ठे चला लेते हैं, one is related to the glucose breakdown and another is related to the oxygen formation, oxygen utilization। यहां तक बात क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा अपना सफर बढ़ाते हैं बेटे, जहां हम बात करेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन की, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने आपको पहले ही बोला दैट देयर इज नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, नो यूज ऑफ ऑक्सीजन। सर ये किन में होती है, ये किन में होती है, इट ऑकर्स इन यीस्ट, इट ऑकर्स इन यीस्ट, एंड बेटे इसको कहते हैं फर्मेंटेशन भी, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन भी। देखो बेटा आप जब अपनी NCERT पढ़ोगे ना, आई नॉट एम कॉन्फाइनेड टू स्पेसिफिक बोर्ड्स बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर बोर्ड क्लास 10th, आप लाइन बाय लाइन यही देखोगे कि सर ने बराबर पढ़ाया है, सर ने बराबर पढ़ाया है, तो आप अपना फोकस यहीं पे रखो, आप चैट्स 2 मिनट के लिए बंद रखो। देखो बेटा 10 मिनट का लेक्चर है, आप यू जस्ट क्लोज योर ऑल चैट्स, फोकस ऑन दीज थिंग्स। मैं ब्रीथिंग नहीं पढ़ाऊंगा आज, आई एम जस्ट कन्फाइनिंग माई लेक्चर टू द रेस्पिरेशन बिकॉज आप मेरा हाल देख रहे हो एंड वी आर ऑन फास्टिंग, हमें रोज़ा भी रखा है, तो आज इससे चलाओ काम।
छोटा ही लेक्चर है, तो जस्ट गिव मी योर 10 to 15 मिनट्स, आई विल जस्ट वाइंड इट अप। हाँ, आप अच्छे बच्चे हो, चलिए जी। बेटे हमने क्या कहा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं यूज होता, और ये किस में कहा होता है, यीस्ट में होता है, इसको फर्मेंटेशन होती है। जैसे हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन दो जगहों पे होती थी, एक तो साइटोप्लाज्म में होती थी और मेरे बेटे माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी। हेयर देयर इज नो सच केस, इट ऑकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म, इट ऑकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। चलिए बेटे देखते हैं, चलिए बेटे देखते हैं। जो ही ग्लूकोज आया, इसको किस में कन्वर्ट किया गया बेटे, पायरुवेट में। इसको किस में कन्वर्ट किया गया, पायरुवेट में। और जो पायरुवेट कन्वर्जन था, इसको हमने क्या नाम दिया, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। और ये कहां पे हुआ, साइटोप्लाज्म में। ये कहां पे हुआ, साइटोप्लाज्म में। अब इस पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं रखा जाता, इसको अगेन इन द साइटोप्लाज्म रखा जाता है, साइटोप्लाज्म रखा जाता है, साइटोप्लाज्म में ही रखा जाता है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पे ऑक्सीजन यूज हुआ था मेरे जिगर, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता, देयर इज नो यूज ऑफ ऑक्सीजन। और इन इन चीजों से साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज को पायरुवेट में, इट्स अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इट्स अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो इट्स अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इट्स अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसको क्या काम किया जाता है बेटे, इसको एथेनॉल में चेंज किया जाता है, ETHANOL, एथेनॉल में चेंज किया जाता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज किया जाता है, और बेटे इसको एनर्जी में चेंज किया जाता है, एनर्जी में चेंज किया जाता है, C2H5OH। बेटा आपका आपका आंसर मिला, द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल इज C2H5OH। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, इट्स नॉट हेयर बैलेंसिंग द इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स, काइंडली यू जस्ट आप समझ जाओ ना मैकेनिज्म क्या है, आप समझ जाओ चीज़ों को परखना कैसे है, आप समझ जाओ होता क्या है, फिर दैट बैलेंसिंग द इक्वेशन इज नॉट अ ग्रेट डील। क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर टू यू? हाँ, am I clear to you? This ethanol, this carbon dioxide and this energy, it is derived from pyruvate, which is further derived from glycolysis, and there is no use of oxygen। इसी को हमने बेटे क्या नाम दिया, इसी को हमने नाम दिया anaerobic respiration, इसको हमने fermentation का नाम भी दे दिया, इसको हमने fermentation का नाम भी दे दिया। यहाँ पे क्या होता है, 2 ATP बनते हैं, 2 ATP बन जाते हैं। वहां पे कितने बनते थे, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन जाते थे। यहाँ तक बात क्लियर, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर अहेड। अब एक तीसरा प्रोसेस है, देखो अभी हमने 3 केसेस देखे, अभी हमने 3 केसेस देखे, 2 केसेस देखे हमने, अब तीसरा केस देखना है हमें। सी बेटे, ग्लूकोज था, ऑक्सीजन था, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं था तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बोलेंगे ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन इज बट इट इज लेस, इसको मेरे कहते हैं लैक्टिक एसिड या कोरी साइकिल, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड साइकिल, या इसको कहते हैं इन द हायर क्लासेस यू विल सी कोरी साइकिल। इट वाज कोरी एंड कोरी जिन्होंने साइकिल को डिस्कवर किया था, तो उसी बेसिस पे इसका नाम दिया गया है कोरी साइकिल। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे, ये 3 सिनेरियो आपको याद हुए, ये 3 सिनेरियो आपको याद हुए। कभी कभार क्या होता है, व्हेन वी डू एनी सिटर्नस एक्सरसाइज, सिटर्नस एक्सरसाइज, कभी कभार हम बहुत सारी तेज एक्सरसाइज कर जाते हैं, जिसकी वजह से बेटे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। और इस ऑक्सीजन डिमांड की वजह से क्या होता है कि मसल्स में, इन द मसल्स लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है किन में, मसल्स में। ग्लूकोज पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड कहाँ पे बन जाता है बेटे, मसल्स में बन जाता है। एंड वी फील क्रैम्प्स, हमें फिर लगती है, वी आर नॉट एबल टू मूव, हमें मस्कुलर स्पैज्म्स होते हैं, मस्कुलर ब्रेकडाउन होता है, मस्कुलर टॉयल होता है, मस्कुलर पेन होती है, फटीग होता है, फटीग होता है। तो इसका भी यही है, ग्लूकोज था, इसको पायरुवेट में कन्वर्ट किया, पायरुवेट में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड बहुत कम है, कहाँ पे होता है, मसल्स में होता है। और इसको किस में कन्वर्ट किया गया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया गया,
लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया गया और एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। अल्टीमेटली जो हमारा गोल था रेस्पिरेशन का वो कंप्लीट हुआ ना। अल्टीमेटली द गोल ऑफ रेस्पिरेशन दैट वी हैड वो कंप्लीट हुआ बेटे। दैट सिंपल मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज से एनर्जी निकालना और इस एनर्जी को यूटिलाइज करना कहाँ पे, तीनों केसेस अगर हम देखेंगे, बी इट एरोबिक रेस्पिरेशन, बी इट एनारोबिक रेस्पिरेशन, या बी इट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, तो तीनों किस्सों में, तीनों जगहों पे बेटे आई कैन से दैट लैक्टिक एनर्जी बनी और इसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। दिस एनर्जी यही यूटिलाइज की जाती है। एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय सेल्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज एंड एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आई होप बेटे आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो। आई हैड प्रिपेयर्ड द स्लाइड्स फॉर ब्रीथिंग एज वेल। अच्छा टॉपिक है, 15 मिनट 20 मिनट में हो जाता, बट सिंस माई हेल्थ इज नॉट फाइन राइट नाउ, मैं खुद को आई एम पुशिंग माई सेल्फ हार्ड फॉर यू एंड सॉरी इफ देर इज लेस एनर्जी इन टूडेज लेक्चर। आज मैंने आपको ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया, आई वॉज कन्फाइंड टू द लेक्चर, बट जितना मैंने बोला काइंडली रिवाइज इट। अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं बेटे। आई विश एवरीबडी ऑफ you a good time, and may God bless all of you until next time. Thank you so much.